My lovely students, welcome to Athological. In this session, we'll be discussing some data interpretation sets for XGMT examination. अब पैटर्न तो तुम्हें क्लियर ही होगा XGMT का, आई बिलीव कि क्लियर होगा. So in XGMT, in data interpretation section, in general, there are 15 questions and those 15 questions have to be attempted in 30 minutes. ठीक है, लास्ट फ्यू ईयर्स से दिस इज द पैटर्न. तो थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बट दिस इज द जनरल पैटर्न. लास्ट ईयर देयर वर टोटल 4 sets totaling 15 questions. Some sets were 4 questions, some sets had lesser questions and one set probably had 5 questions. तो practice करते हैं. In this session we also will be taking 4 sets and if you're not already subscribed to the channel तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. And this is the first set with 2 questions and then पहले सारे सेट्स को देख लेते हैं, इसके बाद में पॉज करके तुम अपने एंड पे सॉल्व कर सको. दिस इज द सेकंड सेट with 5 questions, थर्ड सेट with 3 questions and last set with 5 questions. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. And in each set, first pause the video and solve it yourself, then only watch the solution. The first set, Aditya tracks the price of a volatile stock, Technova, over 5 days from Monday to Friday. However, coffee spilled on his notebook and he remembers the following specific facts about the data. फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है and first question is what was the stock price on Tuesday. So from Monday to Friday he tracks the price movement Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Okay, so informations given. First one, the price values are an integer number of rupees per day. ठीक है, price never remained the same on 2 consecutive days, यानी कि all values from Monday to Friday are distinct. The average price for the 5 days was exactly rupees 52. So if average is 52, तो sum क्या हो जाएगा? 52 into 5 because 5 days है. Rupees 260 will be sum of all the values. Okay. Price on Wednesday was the highest of the week. Price on Wednesday was highest. And price on Friday was the lowest. The total decrease from Thursday to Friday was rupees 15. So whatever value is on Thursday, Friday is 15 rupees lesser. The price on Tuesday was equal to average of Monday and Wednesday. Price on Tuesday is equal to Monday का price plus Wednesday का price divided by 2. And last information, the price on Thursday is an even multiple of the largest prime less than 30. Largest prime less than 30 का even multiple है. Largest prime less than 30 is 29. Or even multiple of 29 can be 29 into 2 or 29 into 4 or 29 into say 6 and so on. 29 into 2 will be 58. 29 into 4 will be 116. बट हमें एवरेज चाहिए सारी वैल्यूज का 52. और लीस्ट वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? हमको लीस्ट वैल्यू मिल रही है फ्राइडे पे, और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है फॉर थर्सडे. ओके, सो जो फ्राइडे का वैल्यू है दैट इज मिनिमम, सो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ फ्राइडे विल बी लेस देन एवरेज, क्योंकि एवरेज हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज का ही तो होता है अल्टीमेटली. ठीक है, सो वैल्यू ऑन फ्राइडे मस्ट बी लेस देन 52. और थर्सडे का वैल्यू -15 इज द लोएस्ट वैल्यू, इज द वैल्यू फॉर फ्राइडे. तो हमें ये बात तो क्लियर है कि थर्सडे का जो वैल्यू है हमारा दैट मस्ट बी लेस देन 52 + 15, यानी कि लेस देन 67. थर्सडे वाला वैल्यू जो होगा दैट विल बी लेस देन 67. क्या ये बात क्लियर है? और अगर ये बात क्लियर है तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन पॉसिबल, दैट इज 58. यानी कि प्राइस ऑन थर्सडे मस्ट बी 58 ओनली. 116 नहीं हो सकता है, क्योंकि 116 होगा तो 116 - 15 101 विल बी प्राइस ऑन फ्राइडे, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि एवरेज ही हमारा ₹52 है. सो ₹58 इज द प्राइस ऑन थर्सडे. And hence price on Friday will be -15, ₹43. So minimum value of the stock price is ₹43 and that is unique because prices on all days are distinct. तो इतना इन्फॉर्मेशन तो मिल गया. अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का प्राइस वैल्यूज हमें पता लगाना है. टोटल सम हमारा ₹260 है और थर्सडे प्लस फ्राइडे कितना आ रहा है? 58 + 43 दैट इज 101. सम ऑफ थर्सडे एंड फ्राइडे इज 101. सो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 260 - 101, सो दैट इज 159. So stock price on Monday plus Tuesday plus Wednesday that is equal to 159. और ट्यूसडे का प्राइस एवरेज है मंडे और वेडनेसडे का, यानी कि क्लियरली एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है. अगर मैंने 2 वैल्यूज लिया और उनके बीच में उनका एवरेज रख दिया तो अल्टीमेटली ऑल दीज 3 वैल्यूज विल बी एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है कि नहीं? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे इज एवरेज ऑफ मंडे एंड वेडनेसडे, यानी कि तीनों वैल्यूज का एवरेज हमारा ट्यूसडे है. 1/3 होगा, एवरेज है. 3 नंबर्स अगर एपी में है, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, तो मिडिल वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल सम डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एवरेज है उनका. तो वैल्यू ऑन ट्यूसडे भी फिक्स हो गई यहाँ से, 159 इज टोटल सम
तो 159/3 मस्ट बी वैल्यू ऑन ट्यूसडे, और क्योंकि वेडनेसडे का वैल्यू मैक्सिमम है तो दिस विल बी 53 प्लस समथिंग, यानी 53 प्लस एक्स वी कैन से, एंड वैल्यू ऑन मंडे मस्ट बी 53 माइनस समथिंग। तो वैल्यूज हमें मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की मिलेंगे 53 माइनस एक्स, 53 एंड 53 प्लस एक्स। बिकॉज वेडनेसडे का वैल्यू मैक्सिमम है तो दैट विल बी 53 प्लस समथिंग, और मंडे का वैल्यू 53 माइनस समथिंग, तभी तो एवरेज हमारा 53 आएगा। अब बस ये हुआ कि एक्स एक एडिशनल अननोन है हमारे पास इन दिस क्वेश्चन, और इन्फॉर्मेशन और क्या एडिशनल है हमारे पास कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, वेडनेसडे का है, यानी कि 58 से तो बड़ा वैल्यू होगा क्योंकि 58 थर्सडे को वैल्यू आ रहा है, तो 53 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 58। सो एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 58 माइनस 53, यानी कि 5 से बड़ा वैल्यू होगा एक्स। सिमिलरली 53 माइनस एक्स, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारा आ रहा है फ्राइडे को विच इज 43, तो मंडे का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 40, 53 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 43, तो एक्स हमारा हो जाएगा लेस देन 53 माइनस 43 लेस देन 10। तो x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10, 5 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, तो x कैन बी इक्वल टू 6, या फिर हो सकता है 7 और 8 और 9, 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट वाज द स्टॉक प्राइस ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का प्राइस तो पहले ही हमने निकाल लिया, दैट इज 53, ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर श्योर। बट मंडे और वेडनेसडे के प्राइस हम क्या यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, थिंक अबाउट इट। अच्छा, क्या सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट आएंगी? फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्स इक्वल टू 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया, तो क्या सारी वैल्यूज हमें लिखने की जरूरत है, या हमें आइडियली अभी ऑलरेडी पता है कि सारी वैल्यूज यूनिक होंगी? देखो होगा क्या कि थर्सडे का वैल्यूज, थर्सडे फ्राइडे वैल्यूज मिनिमम दैट इज 43, हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया है, तो अब जो मंडे का वैल्यू आएगा वो डेफिनेटली फ्राइडे से बड़ा आएगा, यानी कि डिफरेंट आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, यूनिक आएगा। सिमिलरली ट्यूसडे का वैल्यू 53 है, 53 के बराबर अब कोई वैल्यू आना नहीं है, बिकॉज वैल्यू ऑन वेडनेसडे विल बी 53 प्लस समथिंग, एंड वैल्यू ऑन वेडनेसडे विल आल्सो बी ग्रेटर देन 58, यानी कि ऑल वैल्यूज विल बी यूनिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू 7 पे भी 6 पे भी जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो सारी की सारी वैल्यूज फॉर ऑल 5 डेज विल बी यूनिक, सिमिलरली फॉर 7, सिमिलरली फॉर 8, सिमिलरली फॉर 9, यानी कि अब यहाँ पे यूनिक आंसर नहीं पता लगा सकते फॉर एवरी डे। मंडे और वेडनेसडे के ऑप्शंस हमारे डिपेंड करेंगे, एक्स इक्वल टू 6 पे डिफरेंट वैल्यू आएगा, 7 पे डिफरेंट आएगा, 8 पे डिफरेंट आएगा, 9 पे डिफरेंट आएगा, देयर विल बी टोटल 4 पॉसिबल वैल्यूज फॉर दीज वैल्यूज ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो फिक्स हो गया, बट अगर क्वेश्चन पूछता मंडे को क्या स्टॉक प्राइस आएगा तो आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वेडनेसडे को क्या प्राइस होगा स्टॉक, तो आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट यस, बाकी डेज का आंसर तुम्हारा फिक्स हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टॉक प्राइस ऑन मंडे, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ओके, सो स्टॉक प्राइस ऑन मंडे वाज 53 माइनस एक्स, और एक्स कैन बी इक्वल टू 6, 7, 8 और 9। अब क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है इसको और एक्स हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी मिनिमम, क्योंकि जितना मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे उतना बड़ा वैल्यू आएगा, तो एक्स शुड बी इक्वल टू 6, 53 माइनस 6 that is equal to 47 must be the maximum possible value of stock price on Monday. Option B will be the answer. Is that clear? और ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि x इक्वल टू 6, 7, 8, 9 सारी केसेस में हमें वैल्यूज यूनिक मिलेगा, उसका लॉजिक हमें पता है। क्यों मिलेगा? बिकॉज ऑब्वियसली हमने कंडीशन सारी की सारी अप्लाई की हुई है ऑलरेडी, ठीक है, कि x शुड बी ग्रेटर देन 5, x शुड बी लेस देन 10, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद में मिला है, तो ऑल वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट फॉर श्योर। तो चेक करने की एडिशनली अब जरूरत हमको नहीं है। दिस वॉज अवर फर्स्ट सेट। आई बिलीव कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगले सेट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेट, मुलायम सॉफ्टवेयर कंपनी बिफोर सेलिंग अ पैकेज टू इट्स क्लाइंट्स फॉलोज द फॉलोइंग शेड्यूल। अब इस पे बेस्ड हमारे 5 क्वेश्चन हैं। ओके, तो दे फॉलो द गिवन शेड्यूल। शेड्यूल क्या है उनका? मंथ फ्रॉम मंथ 1 to 2 दे डू स्पेसिफिकेशन स्टेज, मंथ स्टेज एंड कॉस्ट in 1000 rupees per man per month. From month 1 to 2 specification stage है, from month 3 to 4 design stage है, 5 to 8 coding stage है, 9 to 10 टेस्टिंग स्टेज है, और 11 to 15 मेंटेनेंस स्टेज है। और फिर हर एक स्टेज का जो हमारा कॉस्ट है पर मैन पर मंथ वो भी डिस्टिंक्ट है, 40,000, 20,000, 10,000, 15,000, 10,000। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच मंथ वो भी गिवन है हमें, मंथ, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड सो ऑन, 15 मंथ तक टोटल हमें डेटा गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन लग रहा होगा कि डेटा काफ़ी ज़्यादा है, बट एक बार करना शुरू करोगे तो चीज़ें होंगी, बिल्कुल डुएबल सेट है। तो अपने एंड पे अगर अब तक एफर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। ड्यू टू ओवर रन इन द डिज़ाइन स्टेज टुक 3 months। तो आइडियली प्लानिंग के हिसाब से डिज़ाइन स्टेज शुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 2 months, मंथ 3 एंड मंथ 4, बट एक्चुअली ये हुआ कि ड्यू टू ओवर रन इन द डिज़ाइन स्टेज टुक 3 months, आई मंथ 3, 4 एंड 5। द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन डिज़ाइन इन द 5th month वॉज 5, क्योंकि ऐसे 5th month में प्लान क्या था, एज पर द प्लान
नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन फिफ्थ मंथ इज इक्वल टू 4, बट वो कब है, जबकि फिफ्थ मंथ हमारा कोडिंग से बिलोंग करे। बट हुआ क्या यहाँ पे, फिफ्थ मंथ पे डिजाइन चला गया और डिजाइन में फिफ्थ मंथ में 5 पर्सन आर वर्किंग। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट इनकर्ड इन द फिफ्थ मंथ ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन कोडिंग टेक्निक्स, दिस स्टेज वॉज कंप्लीटेड इन मंथ्स टू 6 and 8 ओनली। यानी कि अर्लियर शेड्यूल में कोडिंग वॉज सपोज टू हैपन इन फिफ्थ मंथ, बट अब अपडेट की वजह से बिकॉज ऑफ ओवर एंड डिजाइन विल बी हैपनिंग इन द फिफ्थ मंथ। तो इनिशियल एंड अपडेटेड cost for month number 5. So initially month 5 was supposed to be a coding month with cost 10,000 rupees per man per month, और एक ही मंथ की हम बात कर रहे हैं, और फिफ्थ मंथ में देयर वर सपोज टू बी 4 people and cost was 10,000. तो 4 into 10,000, this would have been the cost 40,000, but now there are 5 persons instead, और क्योंकि कोडिंग आप डिजाइन वाले कर रहे हैं तो डिजाइन में कॉस्ट क्या है, 20,000 पर मंथ है। तो 5 into 20,000 विल बी द कॉस्ट विच इज 100,000। 40,000 होना था, अभी है 100,000, यानी कि 60,000 एक्स्ट्रा है विच इज 150%। 60/40 3/2 150%, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था, परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट इनकर्ड, तो दैट इज 150%। ओवरऑल 250% हो जा रहा है, बट चेंज आ रहा है हमारा 150% का, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी इन दिस केस। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द अबव क्वेश्चन यानी इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट क्वेश्चन का ही लेना है। व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन द न्यू कोडिंग स्टेज? कॉस्ट इनकर्ड इन द न्यू कोडिंग स्टेज, ओके। अंडर द न्यू टेक्निक 4 people वर्क इन द 6th month एंड 5 in the 8th month, यानी कि अभी डेटा यहाँ पे भी चेंज हुआ है, तो 6 months में नाउ देयर आर 4 people दैट विल वर्किंग इन द कोडिंग स्टेज, और 8th month में देयर विल 5 people, ओके। सो कोडिंग में 10,000 पर मंथ था, और अब कोडिंग क्या हो रहा है, एज पर द इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट क्वेश्चन कि अब कोडिंग 6 मंथ से लेके 8th month तक होगा, 10,000 पर मंथ। 6 मंथ में देयर आर 4 persons, 7th मंथ में 5 persons एंड 8th मंथ में 5 persons। अब इन तीनों मंथ में कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो 6 मंथ में देयर आर 4 देन 5 देन 5, टोटल इफेक्टिवली मैन मंथ्स कितने लगेंगे हमारे, 5 + 5 + 1 14 मैन मंथ्स, क्योंकि मैन पर मंथ 14 into 10,000, तो 140,000 विल बी द टोटल कॉस्ट। 40,000 in the first month, 50 यानी कि टोटल 140,000, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the difference in cost between the old and new techniques? Difference in cost between old technique and the new technique क्या होगा? तो ओल्ड टेक्निक और न्यू टेक्निक में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारा क्या आ रहा था, अल्टीमेटली डिजाइन में कॉस्ट जो हमारा है, जो फिफ्थ मंथ में चेंज आया बस वही तो चेंज आया है, बिकॉज जो हमने सेकंड चेंज किया, जो सेकंड क्वेश्चन में है, उसकी वजह से क्या हमारा कॉस्ट में फर्क पड़ेगा, क्या कॉस्ट में और कोई डिफरेंस पड़ेगा? देखो डिजाइन में जो चेंज आया है उससे मंथ 5 में चेंज हुआ है, चेंज आया है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे जो चेंज आया है हमारा कोडिंग स्टेज में, 4 people आर वर्किंग इन द 6th month एंड 5 in the 8th month। तो पहले हमारे कर रहे थे 5 and 4, 6 month में 5 एंड 8th month में 4, तो अब पहले भी 9 कर रहे थे इफेक्टिवली 6th और 8th month को इंक्लूड करके, अभी भी 9 कर रहे हैं, तो वहां से इस इंफॉर्मेशन की वजह से देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर, ठीक है। मंथ की कॉस्ट में यानी 6 मंथ्स की कॉस्ट में चेंज आया है, बट 6th + 7th + 8th मंथ की कॉस्ट में देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर, isn't it so? तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं आया, द ओनली चेंज विल बी बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, 60,000 का जो एडिशनल चेंज आया है हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि डिफरेंस इन द कॉस्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टेक्निक विल बी ₹60,000 ओनली, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द न्यू टेक्निक विच स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर मुलायम सॉफ्टवेयर कंपनी? विच स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज मोस्ट एक्सपेंसिव? कौन सा स्टेज हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव होगा अंडर दिस न्यू टेक्निक? तो टोटल कॉस्ट हमें हर एक स्टेज का निकालना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज में और नई कंडीशन में, नए में क्या है, दिस इज फ्रॉम 3 to 5, डिजाइन हमारा 3 से 5 है, कोडिंग इज फ्रॉम 6 to 8, और बाकी इन्फॉर्मेशन 6 to 8 का सम सेम है, तो यहाँ पे बॉदर नहीं करना है 4 को 5 करने का, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा 4 की बजाय 5 हो जाएगा। तो कॉस्ट इन स्पेसिफिकेशन स्टेज कितना होगा, 1 for month 1 to 2, दैट इज मंथ में हमारे पास 2 persons आर देयर, 1 2 में 3, टोटल 5, तो 5 into 40,
200,000। डिज़ाइन में क्या कॉस्ट आया हमारा 20,000 था, और 4 + 3 + 5 यानी कि 7 + 5 12, 20 × 12 240,000। डेफिनेटली मैक्सिमम तो यही लग रहा है क्योंकि बाद में नंबर ऑफ पर्सन इतना ज़्यादा है ही नहीं किसी केस में, तो आंसर तो शायद डिज़ाइन ही होगा। फिर भी देख लेते हैं। कोडिंग में 10,000 पर मंथ था, कितना कॉस्ट आया था हमारा? ऑलरेडी मैंने निकाला था क्या कोडिंग में? हाँ निकाला था, शायद 140 आया था। हाँ तो 140,000 × 14। और टेस्टिंग में 15,000 है। नंबर ऑफ पर्सन कहाँ? 9-10 मंथ में 4 + 1 5, तो 15 × 5 75,000। लास्टली मेंटेनेंस में देर आर 5 मंथ्स 11 से 15 तक, 3 + 3 + 3 9, तो 10 × 9 90,000। 200, 240, 140, 75 एंड 90। सो मैक्सिमम इज फॉर डिजाइन स्टेज, ऑप्शन डी। ठीक है, मैक्सिमम इज फॉर डिजाइन स्टेज। देन उसके बाद में आ रहा है अपना स्पेसिफिकेशन स्टेज, आफ्टर दैट कोडिंग स्टेज, then maintenance stage, and lastly testing stage. Okay, next question. Which 5 consecutive months have the lowest average cost per man month under the new technique? Lowest average cost per man month under the new technique. Which 5 consecutive months have the lowest average cost? अब क्या हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए सेपरेटली हर एक बार 5 मंथ्स को देखने की जरूरत है? या ऑलरेडी हमें नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि फ्रॉम मंथ 11 to 15 मेंटेनेंस है, और मेंटेनेंस का कॉस्ट मिनिमम है 10,000 पर मंथ। कोडिंग का भी कॉस्ट मिनिमम है, बट कोडिंग तो 3 ही मंथ चल रहा है, तो वहाँ पे एवरेज हमारा 10,000 से बड़ा आएगा। बट डेफिनेटली फ्रॉम 11 to 15, मंथ 11 to मंथ 15 मेंटेनेंस है, और मेंटेनेंस का कॉस्ट मिनिमम है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी स्ट्रेट अवे। और कुछ भी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? सो दिस सेट इज ऑल्सो डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट पे। सेट नंबर 3। नाउ दिस सेट हैज टोटल 3 क्वेश्चंस। Information is a billionaire leaves 5 heirlooms to be distributed among his 3 children, यानी कि 5 आइटम्स हैं जिनको कि डिस्ट्रीब्यूट करना है among his 3 children, Alice, Bob and Charlie. The items with their respective value and weights are as follows: diamond, gold bar, painting, statue and vase. Diamond का price is ₹100 lakhs, weight is 100 grams. For gold bar, price is 60 lakhs, weight is 300 grams. For painting, 50 lakhs, 200 grams. Statue, 40 lakhs, 400 grams. And lastly, vase, 30 lakhs, weighing just 100 grams. Okay. So vase बड़ा कॉस्टली है। Anyway, rules of the will are as follows. Every item must be taken by exactly one of them. ठीक है, हर एक आइटम एक ही पर्सन को मिलेगा, यानी कि जितना जिसको मिलेगा उसको पूरा मिल जाएगा। No one can carry more than 500 grams of weight. Alice is the eldest. She must get the highest total value. Charlie is the youngest. He must get the lowest total value. And if you take the diamond, you cannot take the vase. So these are the conditions. कि डायमंड एंड वेस कैन नॉट गो टुगेदर। जिसके पास डायमंड होगा उसके पास वेस नहीं होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ चार्ली इनहेरिट्स द गोल्ड बार एंड बॉब कैरीज मोर वेट इन ग्राम देन एलिस, विच आइटम्स डज एलिस इनहेरिट? ठीक है, फिर हमारे ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन है। सेकंड, इफ एलिस इनहेरिट द स्टैचू। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्योंकि हमें अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो हमेशा जब भी कभी अरेंजमेंट करना हो तो एक बार 1-2 क्वेश्चन जरूर देख लेना सरसरी निगाह से, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे कंडीशनल केसेस हैं, यानी कि कंडीशनल केसेस होंगे, यानी कि मल्टीपल केसेस बन रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं बनेगा, एक यूनिक केस नहीं बनेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब बिना क्वेश्चन को देखे अगर यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करोगे तो मल्टीपल केसेस बनेंगे और बहुत सारा टाइम खराब होगा। तो बेस्ट है ऐसे केसेस में क्या है कि अगर तुम्हारे केसेस बन रहे हैं जो कि क्वेश्चन से पता चलेगा, तो फिर पहले क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करो फिर स्ट्रेट अवे। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारा टाइम तुम्हारा जाएगा, तुम सोचते रहोगे कि हो सकता है किसी इन्फॉर्मेशन से ये सेट हो जाए, पर वो होगा नहीं, बिकॉज क्वेश्चंस में कंडीशंस हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं, इफ वाला स्टेटमेंट नहीं दिया है, डायरेक्टली पूछा है कि ये बताओ कि एलिस को कितना मिलेगा, ये बताओ कि बॉब को कितना मिलेगा, यानी कि डेफिनेटली एक यूनिक केस बन रहा होगा, और फिर वहाँ पे डायरेक्टली हमको अरेंज करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चार्ली इनहेरिट्स द गोल्ड बार। गोल्ड बार, ये इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है, तो ए बी एंड सी। चार्ली को गोल्ड बार तो मिल गया है, ये बात पक्की है। चार्ली हैज बीन गिवन द गोल्ड बार, और गोल्ड बार का कॉस्ट है 60 लाख रुपीज। टोटल कॉस्ट कितना है इन सबका मिला के? टोटल कॉस्ट इज 100 + 60 160 + 50 210 + 70 280 लैक्स। और अगर 280 लैक्स कॉस्ट है तो एवरेज हमारा आ रहा है रफली और 93.33 लैक्स। तो चार्ली को इससे तो छोटा ही वैल्यू मिलेगा, इससे तो लेसर ही मिलेगा, क्योंकि एवरेज से कम मिलना है, मिनिमम मिलना है चार्ली को, और मैक्सिमम मिलना है एलिस को।
एलिस को डेफिनेटली 93 लाख से ज़्यादा मिलेगा। और फिर कंडीशन क्या है, चार्ली को गोल्ड बार मिल गया, ये तो पहली बात की है। सेकंड मेंशन इज बॉब कैरीज मोर वेट इन ग्राम देन एलिस, दैट शुड ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। तो विच आइटम्स डज एलिस इनहेरिट? अब या तो ऑप्शन से जा सकते हो ऐसे केस में, ठीक है, या तो ऑप्शन से जा सकते हो और या फिर बिना ऑप्शन के जाओ, ठीक है, बिना ऑप्शन के ट्राई करो। बट कंडीशन ये हमारा फॉलो करना है कि बॉब कैरीज मोर वेट देन एलिस। अब क्योंकि गोल्ड बार पहले ही दे चुके हैं तो इसको तो हटा ही दिया हमने। नाउ डायमंड इज रिमेनिंग, डायमंड रुपीज 100 लाख का है, तो डायमंड अगर हमने एलिस को दे दिया, बिकॉज डायमंड का वेट कितना है, 100 ग्राम्स ओनली है, और वेस्ट का वेट भी 100 ग्राम्स ही है, बट डायमंड और वेस्ट साथ में नहीं मिल सकते एक पर्सन को, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो डायमंड अगर हमने एलिस को दे दिया तो डेफिनेटली वेस्ट तो फिर एलिस को नहीं मिलेगा, वेस्ट या तो चार्ली को मिलेगा और या फिर बॉब को मिलेगा, यही दो पॉसिबिलिटीज होंगी, इजंट इट सो। लेकिन अगर हमने चार्ली को वेस्ट दे दिया, अगर दे देते हैं चार्ली को वेस्ट फॉर एग्जाम्पल, देन वेस्ट इज ऑफ 30 लैक्स, चार्ली हैज ऑलरेडी गॉट गोल्ड बार्स, यानी कि चार्ली का टोटल हो गया 90 लैक्स। बट आप अब क्या पॉसिबल है कि हम 90 लाख से ज़्यादा एलिस और बॉब दोनों को दे पाए? दिस विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज एवरेज ही हमारा 93 लाख है, और किसी भी चीज़ को तोड़ तो सकते नहीं, जो मिलेगा एक को पूरा मिलेगा। तो अगर हमने चार्ली को 80 लाख 90 लाख दे दिया, 100 लाख अगर हमने दे दिया अल्टीमेटली एलिस को, तो फिर बॉब को कितना मिल जाएगा हमारा? बॉब को 90 लाख से कम मिलेगा अमाउंट, एग्जैक्टली बॉब को भी 90 लाख से मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, 90 लाख से मिलेगा। बट बॉब को और चार्ली को इक्वल नहीं मिलना चाहिए, चार्ली को मिनिमम मिलना चाहिए और हाईएस्ट मिलना चाहिए एलिस को। तो यानी कि डेफिनेटली वेस्ट तो फिर बॉब को ही मिलेगा, ये बात सर्टेन है। अगर हमने एलिस को डायमंड दे दिया तो वेस्ट मस्ट बी गिवन टू बॉब, ओके। और वेस्ट है हमारा 30 लाख का, डायमंड इज ऑफ 100 लाख, ठीक है। डायमंड 100 लाख का होगा, वेस्ट होगा 30 लाख का। अब इसके बाद में क्या बचा है, और दोनों का वेट सेम है, डायमंड और वेस्ट का वेट सेम है, बच गया हमारे पास पेंटिंग एंड स्टैचू। सो स्टैचू मस्ट बी गिवन टू बॉब, बिकॉज स्टैचू का वेट ज़्यादा है, और पेंटिंग मस्ट बी गिवन टू एलिस ऑफ 50 लाख, और स्टैचू है हमारा 40 लाख का। तो 70 150 70 एंड 60, ये हमारा केस बन गया। और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि बॉब का वेट ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज 400, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टैचू प्लस वेस्ट कितना हो रहा है, दिस इज 500 ग्राम्स, यस, तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली ए के लिए तो वेट कम ही है, बिकॉज दैट इज 100 प्लस 200 300 ग्राम्स ओनली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। आंसर विल बी डायमंड एंड पेंटिंग टू एलिस मस्ट बी गिवन, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ओके। क्लियर है बात? अब अगर हमने डायमंड इंस्टेड बॉब को दे देते, तब हमारे लिए प्रॉब्लम ये आता कि फिर डायमंड का वेट कम है, वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर हमें ज़्यादा आइटम देने पड़ते हैं इसको, और फिर 500 ग्राम से या तो कम नहीं हो पाता, या डेफिनेटली बॉब का वेट एलिस से कम नहीं कर पाते। दैट इज वाई डायमंड जो हल्की चीज़ थी और वैल्यू में ज़्यादा था, उसको हमने एलिस से देके ही स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एलिस इनहेरिट्स द स्टैच्यू एंड बॉब एंड्स अप विद अ टोटल शेयर वर्थ एग्जैक्टली रुपीज 110 lakhs, विच आइटम डज चार्ली इनहेरिट? अगेन कंडीशनल है, और कंडीशन हमारे पास ये है कि एलिस इनहेरिट कर रहा है स्टैच्यू दिस टाइम। So statue is given to in Alice, which is of 400 grams and 40 lakhs. तो स्टैचू ऑलरेडी इज 400 ग्राम्स। अब अगर स्टैचू 400 ग्राम्स का हमने ऑलरेडी एलिस को दे दिया है, तो अब एलिस को 100 ग्राम से ज़्यादा वेट का आइटम नहीं दिया जा सकता, और क्योंकि एलिस मस्ट बी एवरेज ही हमारा 93.33 लाख है, तो पक्की सी बात है कि एलिस को हमें 50 लाख से बड़ा का आइटम देना पड़ेगा। सो एलिस को वेस्ट तो दे नहीं सकते, 100 ग्राम्स का आइटम देना, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट एलिस मस्ट बी गेटिंग द डायमंड, ठीक है। तो एलिस मस्ट बी गेटिंग द डायमंड, तो एलिस को डायमंड दे दो, देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सो 100 लाख मिल गया एलिस को यहाँ से, एलिस का मामला तो फिक्स्ड हो गया, 100 ग्राम्स प्लस 100 ग्राम्स, अब इससे ज़्यादा एलिस को कुछ भी नहीं दे सकते, एलिस को 140 लाख मिल जाएगा। और फिर हमें मिल रहा है बॉब को 110 लाख मिल रहा है, 140 इसको मिल गया, 110 इसको मिल गया, तो बचा कितना, 30 लाख बचा है और चार्ली। और 30 लाख में क्या बजट में है, सिर्फ बेस है, तो बेस ही मिलेगा, और क्या मिलेगा चार्ली को फिर, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, दैट चार्ली मस्ट बी गिवन द बेस, ओके। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ चार्ली इनहेरिट्स द स्टैच्यू एंड बॉब कैरीज द लाइटेस्ट लोड अमंग द 3 सिबलिंग्स, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ एलिस शेयर? चार्ली को स्टैच्यू मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ, इस केस में
चार्ली इज गेटिंग ओनली द स्टैचू, यानी कि ओनली 30 lakhs, तो बच गया हमारे पास 250 lakhs। एंड देन बॉब कैरीज द लाइटेस्ट लोड, यानी कि बॉब का वेट मिनिमम होगा, स्टैचू इज 400 grams, यानी कि बॉब को 300 grams मिलना चाहिए, 400 grams तो नहीं मिलेगा क्योंकि लाइटेस्ट लोड है। ओके, सो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, बॉब कैरीज द लाइटेस्ट लोड, 300 ग्राम्स का क्या आइटम, या उससे कम का भी आइटम हो सकता है, बट 300 ग्राम्स से कम का दोगे, स्टैचू ऑलरेडी हमने दे दिया है तो स्टैचू को तो हटा ही दो। बचा हुआ आइटम का वेट कितना है, 100 प्लस 200 प्लस 300, यानी कि प्लस 100, सो दैट इज 200 प्लस 500, 700 ग्राम्स बचा है। सो इधर बॉब को दे दोगे 100 ग्राम्स, 600 ग्राम्स बचेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 500 ग्राम से ज़्यादा किसी को मिल नहीं सकता। सो 200 500 वाला केस हो सकता है, और 300 400 वाला केस हो सकता है, अगर वेट के हिसाब से देखें, इजंट इट? ठीक है, या तो 200 500 हो जाएगा। तो अगर 200 500 वाला हमने केस लिया, सॉरी 200 एंड 500, हाँ, तो अगर 200 ग्राम दे रहे हैं हम, तो पेंटिंग हो जाएगी 50 lakhs की। इस क्वेश्चन में मल्टीपल केस बन जाएगा, एक सेकंड देख लेते हैं। पेंटिंग हो जाएगी 50 lakhs की, और फिर हमारे पास बाकी सब आइटम हमें देना पड़ेगा किसको, अच्छा डायमंड और वेस्ट तो साथ में नहीं आ सकते ना, हाँ हाँ वो प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर मैंने पेंटिंग दे दिया इसको, तो डायमंड और वेस्ट को फिर साथ में देना पड़ेगा एलिस को, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये वाला केस नहीं हो सकता। दिस केस इज नॉट पॉसिबल, तो सेकंड वाला केस ही होगा फॉर श्योर, 300 ग्राम्स एंड 400 ग्राम्स। तो चार्ली का वेट लोड होगा 300 ग्राम्स और 400 ग्राम्स विल बी गिवन टू एलिस। ओके, अब 300 ग्राम्स का चार्ली को क्या मिल सकता है, गोल्ड बार हो सकते हैं, और या फिर वेस एंड पेंटिंग हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है, तो गोल्ड बार होगा या फिर वेस एंड स्टैचू 40 lakhs का था, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो गोल्ड बार होगा या फिर वेस एंड पेंटिंग होगा। अगर हमने गोल्ड बार दे दिया चार्ली को, बॉब को, तो फिर वेस एंड डायमंड दोनों को दोनों हमें देने पड़ेंगे एलिस को, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो दिस मस्ट बी द केस, वेस प्लस पेंटिंग मस्ट बी गिवन टू बॉब, और बचे हुए दोनों आइटम यानी कि डायमंड एंड गोल्ड बार मस्ट बी गिवन टू एलिस, डायमंड एंड गोल्ड बार मस्ट बी गिवन टू एलिस। तो एलिस का वेट हो गया हमारा 400 ग्राम्स, 300 ग्राम्स फॉर बॉब एंड 400 ग्राम्स फॉर चार्ली, तो लाइटेस्ट लोड इज विद बॉब। और डायमंड और गोल्ड बार का टोटल प्राइस कितना है, 160 lakhs, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि चार्ली इनहेरिट्स द स्टैचू ओनली एंड शेयर ऑफ एलिस विल बी ₹160 lakhs इन दिस केस। बढ़िया सेट था, ठीक है, क्वेश्चंस वर डेफिनेट ट्रिकियर, और अच्छा बहुत ज़्यादा डेटा नहीं था, बट जो डेटा था उसको अरेंज करने में थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही था, तो क्लियर होगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेट। अब अगले सेट पे चलते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। लेकिन देखो एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो सेट हमने जैसे डिस्कस किया, तो ऐसे सेट को हमेशा बाद के लिए रखना है। एग्जाम में तुम्हें एग्जाम में डेफिनेटली डुएबल सेट्स मिलेंगे जो कि बहुत इजीली सॉल्व होंगे, तो वैसे सेट्स को पहले करना है, उसके बाद में जहाँ पे भी अरेंजमेंट करना है, जहाँ पे भी टाइम लगना है, वो सेट फंसाने वाले हो सकते हैं, वहाँ पे तुम्हारा कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है, कई बार टाइम ज़्यादा लग सकता है, हो सकता है कई बार अल्टीमेटली उस क्वेश्चन को तुम फिनिश ना भी कर पाओ, तो ऐसे सेट्स को हमेशा बाद के लिए रखना है। ठीक है, सो पहले हमें ज़्यादा डुएबल सेट्स करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस सेट, सारे डेटा गिवन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई कई अरेंजमेंट नहीं करना है, डायरेक्टली बस वैल्यूज देखना है, आंसर करना है, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हो, बट अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन कैन डेफिनेटली बी, ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी डेफिनेटली सॉल्व विदाउट मच एडू, डेफिनेटली किया जा सकते हैं। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे डेटा हमारा क्या है, बार ग्राफ है, मल्टीपल बार ग्राफ्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर ईयर्स, कितने 7 ईयर्स के लिए डेटा है, फ्रॉम 1989 टू 1995। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज रेवेन्यू कलेक्टेड इन द गिवन 7 ईयर्स इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट वैल्यू, एवरेज रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू को सम करके डिवाइड बाई 7 करोगे सिंपली, रेवेन्यू प्रॉफिट के बाद आ रहा है, तो सेकंड वैल्यू, सेकंड बार 120 प्लस 130 250, 250 प्लस 145 395, 400 560, 660, 745, 945, 1165, तो 1165 इज टोटल ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाई 7, तो रफली 160 के आसपास का वैल्यू आएगा, ऑप्शन बी 160। एक सेकंड, ऑप्शन ए भी क्लोज है, देख लेते हैं, 7 1 7, 46 बचा, 7 6 42, 45 बाई 7, तो 168 lakhs आंसर आ रहा है।
ठीक है, एक सेकेंड, 168 7 6 42 164 लाख आंसर आएगा इसका। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? एक बार कैलकुलेशन फिर से कर लें। 120 130 250 350 395 560 660 745 945 1165। हाँ सही तो आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी ही आंसर आएगा बिकॉज ये आ रहा है 166 पॉइंट समथिंग आ रहा है वैल्यू। ठीक है, 167 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा था इसलिए कंफ्यूजन था। सो ऐसा ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ₹168 lakhs। Second question, expenditure for the 7 years together form what percent of the total revenue total during the same period? Expenditure for the 7 years is what percentage of revenue for the same period? तो हमें एक्सपेंडिचर को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेवेन्यू तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1165 लाख आया था। एक्सपेंडिचर 102 प्लस 110 212 327 452 587 687 एंड 727 877 877 आया है और 1165 था हमारा एक्सपेंडिचर। सॉरी 1165 था हमारा रेवेन्यू। ओके, सो कितना आया एक्सपेंडिचर हमारा? 877 बाई 1165, रफली 83% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, या फिर 75 भी तो ऑप्शन है। 11 12 7 जार 84 83 तो ज़्यादा है। आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा 75%। देखिए 75 जो ऑप्शन में दिया है वो क्लोज है, वो ज़्यादा क्लोज है, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, 116 है, अगर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 8 तो आ जाएगा 11 हाँ तो फिर डेफिनेटली ज़्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली ऑप्शन ए आंसर होगा, 83% कहीं से भी नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ईयर शोड द ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर? ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट का परसेंटेज इंक्रीज, प्रॉफिट वैल्यूज आर फर्स्ट बार, और परसेंटेज इंक्रीज के लिए हमें एब्सोलूट वैल्यू देखना है कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पे बेस छोटा होगा वहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा होगा। सो फ्रॉम 20 to 25 इंक्रीज ऑफ 5, 25 से 30 इंक्रीज फिर से 5 का है, बट ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज होगा फर्स्ट केस में। फिर 30 से 40 में इंक्रीज 10 का है, तो डेफिनेटली यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हायर हो जाएगा बिकॉज 30 से 40 में 10 का इंक्रीज डबल द इंक्रीज आ रहा है और बेस हमारा 30 है। ठीक है, 20 से 25 में 25% का इंक्रीज था, यहाँ 30 से 40 में 10 का इंक्रीज है यानी कि 1/3 का, तो 33.33% इंक्रीज है। 40 से 50 में अगेन 10 का इंक्रीज है बट ज़्यादा इंक्रीज होगा हमारा पहले वाले केस में। 50 से 60 अगेन 10 फिर 10, यानी कि हमारा आंसर क्लियरली होगा 1992, 33.33%। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, 1992। ओके, ठीक है। अच्छा, जब भी एवरेज वैसे कैलकुलेट करें तो एक बात तुम्हें बताना भूल गया, क्योंकि पूरा लंबा मेथड ही बता रहे थे उस टाइम पे, कि हम एक्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हम एवरेज जब कैलकुलेट कर रहे थे, कि अगर हमें वैल्यू सारी की सारी देखो 120 130 145 165 वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, तो या तो उनके बीच की किसी एक वैल्यू को अपना एवरेज एज्यूम कर लो और फिर उसके हिसाब से डेविएशन देके अपना एवरेज कैलकुलेट कर लो, एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, या फिर ये कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल हमने 120 मिनिमम वैल्यू है तो वहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 120 को अपना एवरेज मान लिया कि 120 तो एवरेज है ही है क्योंकि सारी वैल्यूज 120 से हायर है। अब जितना एक्स्ट्रा आ रहा है बस उसको ऐड कर लो, तो 130 हमारा 10 एक्स्ट्रा है, तो 10 यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा है, फिर 25 एक्स्ट्रा है, 45 एक्स्ट्रा है, 65 एक्स्ट्रा है, 80 एक्स्ट्रा है और 100 एक्स्ट्रा है। तो 180 245 290 315 325, तो 325 बाई 7। ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा और यहाँ पे मिस्टेक होने का स्कोप भी कम है। तो 325 बाई 7 दिस इज बेसिकली रफली 47 के आसपास, तो 167 अपना आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और चाहते तो 120 के बजाय कोई बीच की वैल्यू भी एज्यूम कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल 145 मान लेते, तो 120 को हम -25 करते, 130 को -15 करते, तो हो सकता है कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाती है, 145 से आगे जाने में कुछ वैल्यूज हमारी कैंसिल हो जाती है, फिर कैलकुलेशन आसान हो जाता है, छोटी वैल्यू आती, और एक आइडिया भी लगता है कि हमारा एवरेज किसके आसपास होगा। तो जब भी डेटा गिवन है तो डेटा को कई बार देख के भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि हमारा एवरेज हाँ रफली 160 170 के आसपास ही होगा, क्योंकि सारे के सारे बार हमारे कुछ बार उससे छोटे हैं और कुछ बार उससे बड़े हैं, और कोई बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो है नहीं। ओके,
ठीक है. So next question, in which year was the growth in expenditure maximum as compared to the previous year? Growth in expenditure maximum लास्ट बार, और ग्रोथ कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है हमारा? सो 102 to 110, 8 का ग्रोथ है. 110 to 115, 5 का ग्रोथ है. देन 10 का ग्रोथ है. फिर 125 to 125 अगेन 10 का ग्रोथ है. 135 to 140 5 का ग्रोथ है. और फिर हमारा 10 का ग्रोथ है. इन विच ईयर वॉज द ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर मैक्सिमम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर? अब यहाँ पे एज सच एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कि ग्रोथ हमारा परसेंटेज में चाहिए या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहिए, बिकॉज वैसे देखा जाए तो 1992 और 1993 दोनों में हमारा 10 का ग्रोथ आ रहा है. बट परसेंटेज ग्रोथ मस्ट बी द लॉजिकल सेंस. तो लॉजिकल सेंस के हिसाब से देखें तो 10 का ग्रोथ यहाँ पे आ रहा है. बेस हमारा छोटा है, 115 से 125 पे जा रहे हैं, तो 10 का ग्रोथ है 10 by 115. दिस इज द फ्रैक्शन. बट हमें यहाँ पे भी देखना पड़ेगा परसेंटेज के टर्म्स में, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ है 8 का 102 में, तो 8 by 102. अब इन दोनों को कंपेयर करना है. 8 by 102 तो रफली 8% है, और ये डेफिनेटली 10 by 115 10% तो नहीं है, 9% के आसपास होगा, बट 8% से तो ज़्यादा है. तो आंसर तो हमारा डेफिनेटली 1992. बट अब अगर हमारी वैल्यूज क्लोज होंगी तो कैसे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इन केसेस को, तो वो भी देख लेते हैं कि 8 by 102 है हमारा. इसको सिंप्लीफाई कर लो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में. दिस कैन बी 4 by 51 और 10 by 115 कैन बी रिटन एज 2 by 23. अब इनको कंपेयर करना आसान है. 2 by 23 है एक वैल्यू और एक है 4 by 51. वैसे भी दिख रहा है 2 by 23 इज 4 by 46. जहाँ पे बेस छोटा है वो वैल्यू हायर होगी. अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 51 into 2 इज 102, 23 into 4 इज 92. 92 हमारा 92 से बड़ा है, तो यही वैल्यू लार्जर होगी. जब वैल्यूज क्लोज होंगी तो वहाँ पे हमेशा ऐसे ही हमें अप्रोच करना है कंपेयर करने के लिए. ठीक है, तो फोर्थ में आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया 1992. लास्ट क्वेश्चन, इफ द प्रॉफिट इन 1996 शोज द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ as it had shown in 1995 over the previous year, then what approximately will be the profit in 1996? तो प्रॉफिट हमारा अगर वही सेम एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ शो कर रहा है जो कि 1994 से 1995 में शो किया है, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? सो 1994 में प्रॉफिट इज 60 लैक्स. 60 है, लैक्स है क्या है वो तो नहीं पता. 70 हो रहा है 60 से, नहीं कि 10 का इंक्रीज आ रहा है ऑन द बेस ऑफ 60. तो 1/6 का इंक्रीज है, 1/6 का इंक्रीज है. तो अगर सेम ग्रोथ रखते हैं तो 70 से आगे क्या जाएगा? 70/6 का इंक्रीज आएगा, विच विल बी रफली 12 के आसपास होगा. तो रफली 82 lakhs will be the value of profit in 1996. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा. सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया सारी बातें समझ में आई होंगी, और फिर भी कोई कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल, और साथ में फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.